Welcome to The Emperor Jones by Eugene O'Neill, Summary Part 5। नाटक द एम्परर जोन्स, जिसके नाटककार यूजीन ओनील हैं, की समरी के 5वें भाग में आपका स्वागत है। बिफोर दिस वी हैव सीन 4 parts of the summary, 4 videos based on the summary, and those 4 videos are in continuation, and this 5th part is in continuation of those 4 videos. इससे पहले समरी पर 4 वीडियोस और हमने 4 और वीडियोस में चर्चा की है, और वो 4 वीडियोस निरंतरता में हैं। तो समरी उन 4 वीडियो से आगे बढ़ती हुई यहाँ इस 5वें वीडियो में एंटर करती है। निरंतरता के कारण आप वीडियो 1 से शुरू करके वीडियो 5 तक पहुंचे। In order to see the summary in continuation, begin with video 1 and then go through all the videos in a chronological manner and then reach this video 5th. Jones has been running all night. First he ran from the so-called empire where he had established himself as the emperor by cheating the natives on behalf of their superstitious and ignorant personalities. Now here we have seen that Jones has been running all night. In the previous 4 videos we have seen how Jones has been running hither thither. हमने देखा है कि जोन्स किस तरह से यहाँ वहाँ भागता हुआ, परेशान, भटका हुआ सा सब तरफ दिखाई दे रहा है। तो वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह दौड़ रहा है। First he ran from the so-called empire where he had established himself as the emperor by cheating the natives on behalf of their superstitious and ignorant personalities. सबसे पहले हमने ये देखा था कि ब्रूटस जोन्स ने वेस्ट इंडीज के स्थानीय लोग जो कि सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वासी थे, इग्नोरेंट थे, अनभिज्ञ थे, ऐसे व्यक्तित्व वाले सीधे और सरल लोगों के साथ इसने चीटिंग की थी, छल किया था, और वहां पर इसने अपने आप को एम्परर या सम्राट घोषित किया था। उस सम्राट के रूप में खुद को स्थापित या एस्टैब्लिश किया था। They revolt against him and compel him to run for his life. वो इसका विरोध करते हैं और इसे अपनी जान बचा करके भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। He runs into the jungle where he sees the apparition or ghost of Jeff. Now we find that Brutus Jones, he runs towards the jungle, but there he finds the ghost of Jeff. जैसे ही डर के, परेशान होकर के और रिवोल्ट की स्थिति में, विद्रोह की स्थिति में, वेस्ट इंडीज के जो कैरेबियन आइलैंड है उसको ये छोड़ करके भागता है। वहां से भागने के बाद इसको जेफ का अपैरिशन या घोस्ट नजर आता है। He fires a bullet at the ghost and runs away from it. Here we see that he is so afraid or so tormented by the presence of this ghost that he shoots the ghost and then runs away from it. हमने ये देखा कि जेफ के घोस्ट को या इस आभासीय प्रस्तुति जो प्राकट्य रूप जो दिखाई दिया जेफ का, जो जहां पर जेफ है नहीं लेकिन इसे आभास हो रहा है कि जेफ है, इस तरह का जो एक भूत प्रेत वाला इफेक्ट इसको नजर आया जेफ का, उससे ये इतना परेशान हो जाता है कि ये उसको शूट करता है और फिर वहां से दौड़ करके भाग जाता है। Then he encounters the chain gang and shoots at the guard and runs away. उसके बाद इसको चेन गैंग के लोग मिलते हैं
वहां पर इसने गार्ड को गोली मारी और वहां से भी भाग गया. आफ्टर दैट ही रीचेस द स्लेव मार्केट वेयर ही शूट्स एट द ऑक्शनियर एंड रन्स अवे. And then he reaches the slave market. There also he is very much frustrated by the conduct of the auctioneer. He shoots him and runs away. फिर ये स्लेव मार्केट में जाता है जहां दास बेचे जाते हैं. उसमें जाता है मार्केट में और वहां पर ये ऑक्शनियर नीलामकर्ता को गोली मारता है और फिर वहां से भाग जाता है. After that, he encounters the Congo doctor who advises him to sacrifice himself. Then he comes in contact with the Congo doctor. The Congo doctor advises him to sacrifice himself. फिर ये कॉन्गो विच डॉक्टर के संपर्क में आता है और कॉन्गो विच डॉक्टर इससे कहता है कि तुम्हें अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहिए. He confronts the crocodile and shoots at it and runs away. At that time he also confronts a crocodile and he shoots at the crocodile and runs away. वहीं पर उस समय इसका सामना मगरमच्छ से होता है. ये उस मगरमच्छ को गोली मारता है फिर वहां से भाग जाता है. So we find him in a perpetual state of terror, running away to escape challenging situations. So this is how we have seen that Brutus Jones has been continuously running from one place to the other, from one situation to the other, from one person to the other. हमने देखा कि ब्रूटस जोन्स छूट के भाग रहा है, डर के भाग रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की ओर, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की ओर. इस तरह से हमने इसको दौड़ते हुए ही देखा है. एंड ईच टाइम ही ट्राइज टू एस्केप अ चैलेंजिंग सिचुएशन एंड ऑल द टाइम ही इज ट्राइंग टू अवॉइड सिचुएशंस और इवेड सिचुएशंस दैट आर चैलेंजिंग हिम. और हर बार ये ऐसी परिस्थितियों से बच के भागने की कोशिश कर रहा है जो इसको चुनौतीपूर्ण लग रही हैं. इट इज डॉन नाउ. एट डॉन, लेम, the leader of the rebels, comes with Smithers and a group of natives to the edge of the jungle where Jones entered on the previous night. Now here the scene has the whole night we have been seeing the drama going on and Brutus Jones and his activities. अभी हमने पूरी रात का ड्रामा देखा था जिसमें ब्रूटस जोन्स की हरकतें या उसकी क्रियाएं हमने देखी थी. At dawn, Lem, the leader of the rebels, comes with Smithers. Now here it is dawn. It is early morning time. अब ये सुबह का समय है, भोर का समय है. The leader of the rebels, Lem, he comes here. यहाँ पर जो विद्रोही हैं, उनका नेता लेम आता है with Smithers and a group of natives. और वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ स्मिथर्स है और नेटिव्स या स्थानीय लोगों का एक झुंड भी है. Smithers and a group of natives to the edge of the jungle where Jones entered on the previous night. They have been tracking Jones and when they find that Jones has come to this place in the night, they chase him to that place and reach there. इन्होंने इसका पीछा करके या इसके पीछे घात लगा करके ये देखने की कोशिश की है कि जोन्स रात को कहां तक पहुंचा है और जहां की लोकेशन इनको समझ में आई वहां पर इसके मूवमेंट्स को ट्रैक करते करते ये पहुंच गए हैं. Lem gets delayed in tracking Jones because of the necessity of manufacturing silver bullets, which Lem believes are the only means of taking Jones' life. Lem gets delayed in tracking Jones. यहां पर लेम के आने में देरी थी या उसके आने में विलंब हो गया था. क्यों विलंब हुआ था? क्योंकि he was manufacturing silver bullets. क्योंकि वो सिल्वर बुलेट्स बना रहा था, चांदी के कारतूस बना रहा था. क्यों बना रहा था? There was a necessity for silver bullets.
यहां पर चांदी के कारतूस की आवश्यकता थी, which Lem believes are the only means of taking Jones' life. What was the necessity? The necessity was that silver bullets were required to take the life of Jones. यहां चांदी के कारतूस या चांदी की गोलियां जिनसे की आवश्यकता थी। आवश्यकता क्यों थी? इनसे जोन्स को मारा जा सकता था। Several of Lem's men enter the jungle. Now Lem has not come alone. He has come with a troop of people who are his native friends. यहां पर लेम अकेला नहीं आया है, वो एक ग्रुप या एक जत्था लेकर के आया है ऐसे लोगों का जो इसके साथी हैं और जो इसके साथ जंगल में आए हैं। They soon find the prostrate Jones who was running in circles throughout the night. Now they fortunately catch hold of him and they find that he is lying prostrate. ये देखते हैं कि वो सीधा पड़ा हुआ है और who has been running in circles throughout the night. The whole night he has been running in circles. पूरी रात वो गोल गोल चक्कर काटता हुआ दौड़ता रहा है। यहां पर आकर के वो सीधा पड़ा हुआ है या थकान के कारण एग्जॉस्टेड कंडीशन में वो पड़ा हुआ है। यहां ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में उन्हें जोन्स मिलता है। One of them shoots Jones through the chest with a silver bullet. Now they have come intentionally to shoot Jones or kill Jones. ये लोग सुनियोजित तरीके से जोन्स को मारने के लिए आए हैं। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति ने जोन्स के सीने में गोली चला दी। One of them shoots Jones through the chest with a silver bullet. जिसने सीने में गोली चलाई उसने सिल्वर बुलेट चलाई थी, उसने चांदी की बुलेट चलाई थी। Jones collapses to the ground and when he is hit by the bullet, he collapses to the ground. और जब इसको गोली लगती है तो ये धराशायी हो जाता है, ये जमीन पर पड़ जाता है या इसको ये गोली का जो आघात लगा है इसको या उससे जो इंजरी हुई है इसको, जो नुकसान इसको शारीरिक नुकसान हुआ है उसके प्रभाव के कारण ये वहीं पर फ्लैट पड़ जाता है, जमीन पर धराशायी हो जाता है। Jones' body is brought back to Lem, who thinks that the silver bullet is what killed Jones. Now here we find that Jones has been killed. यहां पर हमें पता चलता है कि जोन्स मर चुका है या उसे मार दिया गया है। Jones' body is brought back to Lem and the body of Jones is brought back to Lem. क्योंकि ये लोग जोन्स को मारने के इरादे से आए थे, वो इनका उद्देश्य सफल हो गया है, तो ये उसके शरीर को लेकर के या इसके डेड बॉडी को ये प्रूव करने के लिए कि इन्होंने जोन्स को मारा है, ये लेम के पास लेकर के आते हैं। Who thinks that silver bullet is what killed Jones? And Lem the leader thinks that Jones has died because of the silver bullets. और यहां पर जो चीफ है, विद्रोही दल का मुखिया लेम, वो ऐसा सोचता है कि जोन्स के मरने के पीछे ये सिल्वर बुलेट्स हैं, क्योंकि उसने कहा था कि मैं सिल्वर बुलेट से ही मर सकता हूं। बट वी नो that the story of the silver bullet was cooked up by the tricky Jones to misguide the superstitious and ignorant natives. But we know very well that the silver element has nothing to do. The silver metal has nothing to do with the bullets or the dying of Jones. हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जोन्स के जीवन का या मृत्यु का सिल्वर बुलेट से कोई वास्ता नहीं था। But we know that the story of silver bullets was cooked up by the tricky Jones to misguide the superstitious and ignorant natives. हमें मालूम है कि सिल्वर का कोई रोल नहीं है, सिल्वर बुलेट्स का कोई रोल नहीं है, ये तो एक मन गढ़ंत तरीका था। This was just a self-made procedure or work of brain
that Brutus Jones had used against the superstitious and ignorant natives. जो अंधविश्वासी और कम अल्प ज्ञानी या अज्ञानी स्थानीय लोग थे, उनके खिलाफ ब्रूटस जोन्स ने ये तिकड़म लगाई थी सिल्वर बुलेट्स की, और वो चल गई थी. Smithers, however, looking at Jones' contorted face, knows what Jones has been going through. Now Smithers has been close to Jones. So when the others say that Jones has been killed by a silver bullet which was made by melting silver coins, यहाँ हमने ये देखा है कि जोन्स को मारने के लिए जो सिल्वर प्रयोग में लाई गई थी, वो सिल्वर चांदी के सिक्कों को गला गला करके उससे चांदी की बुलेट्स बनाई गई थी. तो उस सिक्कों को गलाना, उसके धातु को लेना और उस धातु से बुलेट को बनाना ताकि जोन्स को मारा जा सके, ये प्रोसीजर फॉलो हुआ था. Smithers, however, looking at Jones' fear-contorted face, knows what Jones has been going through. Now, Smithers was a partner to Jones earlier. Now, here he sees that the fear-contorted face of Jones tells the story. यहाँ पर जोन्स का चेहरा डर से, भय से बिल्कुल क्लियरली डरा हुआ है, परेशान है. तो ये जो भयाक्रांत स्थिति है, इस स्थिति को स्मिथर्स देखता है. एंड ही फियर कंटोर्टेड फेस नोज व्हाट जोन्स हैज बीन गोइंग थ्रू, और उसे ये पता चल जाता है कि जोन्स के ऊपर क्या बीती है, उसकी परिस्थितियां क्या रही हैं और वो किस तरह की अवस्था में जिया है. And his fears all put together have resulted in his tragic end. And what killed him? His greed, his ambitions, his treachery and his fears. Now here we find that the fear contorted face of Jones tells the story which Smithers understands. And he knows that what Jones has been going through. उसे मालूम है जोन्स किस परिस्थिति से गुजरा है. And what killed him, और कौन सी चीज थी, कौन सा कारण था जिसने जोन्स को मारा. His greed, his ambitions. जोन्स को मारने वाले जो तत्व थे, वो उसकी ग्रीड थी, उसकी भूख थी, उसकी हवस थी. The greed for power, the greed for snatching money from the poor people, the superstitious people, the ignorant people. यहाँ पर जो ग्रीड, लालच जोन्स के अंदर था, वो गरीब, निश्चल, असहाय लोगों के साथ अत्याचार करके उनका पैसा हड़पने की ग्रीड थी. His ambitions, and the second thing was he was very ambitious. That is the reason why he established himself, whatever method he used, but he established himself as the emperor. यहाँ पर ब्रूटस जोन्स ने तरीका कोई भी अपनाया हो, उपाय कोई भी किया हो, लेकिन ये तय है कि उसने अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने कई पैंतरे अपनाए थे, कई रास्ते अपनाए थे. He had played many tricks to fulfill his ambitions, and it was those tricks and the act of fulfilling them that landed him into trouble. His treachery and his fears. Now there were other things in other sentiments or other behavioral patterns in Jones, and that was treachery. That is cheating people or playing foul with people, and his fears. And he was also afraid of so many things. यहाँ पर जोन्स ग्रीडी भी है, लालची भी है, एम्बिशियस भी है, महत्वाकांक्षी भी है, ट्रेचरस भी है, चीटिंग करने वाला, जालसाजी करने वाला भी है,
एंड हिज फियर्स, और भय से ग्रसित भी है, ऑल पुट टुगेदर हैव रिजल्टेड इन हिज ट्रैजिक एंड। और यही सब चीजें एक साथ यदि रख दी जाएं तो ये एक साथ मिलकर के इन चीजों ने इसका अंत बुलवाया है या इसके अंत तक पहुंचा दिया है। द प्ले द एम्परर जोन्स एंड्स विद द डेथ ऑफ जोन्स, एंड हियर द प्ले एंड्स विद द एंड ऑफ द एम्परर जोन्स और ब्रूटस जोन्स, द मैन एम्परर जोन्स। यहां पर ब्रूटस जोन्स का अंत कहानी में वहां पर होता है जहां उसकी मृत्यु हो जाती है, और जहां उसका अंत होता है वहीं नाटक का भी अंत हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव सीन द समरी ऑफ द प्ले द एम्परर जोन्स इन 5 डिस्कशंस और वीडियोज। इस तरह से हमने 5 वीडियोज में या 5 चर्चाओं में एम्परर जोन्स की समरी को देखा है। दिस इज द एंड ऑफ द समरी। थैंक यू। यह समरी का अंत है। धन्यवाद।